and welcome to The Print. Today we are in Khori Khurd village in Haryana's Nuh district, where the population is embroiled in a fight to prevent illegal waste burning in their vicinity. For over 15 years, villagers in Khori Khurd village allege that they have suffered the contamination of the air, water and soil in the village because of the burning of plastic and rubber waste to produce a substance called gulla, which is then sold for money. According to the residents, over 12 different proprietors inside the village engage in this open-air burning, leading to the emissions of harmful chemicals and carcinogenics into the air and water of the village. Many people complain of itching, infections and breathing problems, but there has as yet been no health investigation inside the village. जी हमारे गांव के लोग हैं जी, काफ़ी लोग हैं, कम से कम 1 दर्जन कबाड़े थे जी, और वो करीबन 15 साल से 2012 से चल रही जी। 2012 में मेरे चाचा ने शुरू में एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसी दिन से चल रही जी। और गांव बहुत परेशान था जी, बीमारी होती है इनसे। जो ये कचरा है इसको ये ड्रम वगैरह, प्लास्टिक, पन्नी और कट्टा वगैरह जो भी कुछ है लाते, मेट वगैरह भिवाड़ी का खुशखेड़ा एरिया से लाते हैं और जी यहाँ हमारे खोरी खुर्द में लाकर जलाते हैं। और सारा अवैध जी, नहीं इनके पास कोई लाइसेंस है, नहीं किसी चीज़ की कोई परमिशन है, ये जी अवैध तरीके से चलाते हैं जी इनको। तो 2012 से एक बार 2016 में इनको नोटिस दिया गया पंचकुला से, तो उसमें इनको सील कर दिया गया। फिर 2023 में नोटिस दिया गया, क्योंकि जब तक बंद नहीं हुआ। फिर 2023 में फिर दोबारा से नोटिस दिया, तो फिर दोबारा सील कर दिया। पर लेकिन जी आज तक इनके बिजली पानी कनेक्शन जो भी है आज तक बंद नहीं हुए। कुछ दिनों के लिए, महीना 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बंद हुए, पर लेकिन वो भी बंद नहीं हुए थे। इस गांव से खोरी खुर्द से खोरी कला में कर ली। Documents show that these open-air incinerators have been ordered to be closed before in 2023 by the Haryana Pollution Control Board. This is because they were in violation of the Hazardous Waste Management Rules of 2016 because the people had not informed the government about what it is that they were actually burning. Villagers also are clueless. The only thing that they have to go through is sneakily shot videos of these open-air incinerators working at night, where there's huge fires and what looks like drums being burnt. There's theories that these incinerators are burning chemical-laden iron and plastic drums, but as yet there's no clue about what exactly are the contents of these drums. The only thing that villagers know is that it smells foul, fills their home with soot, and also makes the air and soil around their villages black and sooty in color. इससे गांव को हमन कोई ना सारे गांव कोई परेशानी रहती है। कबाड़े जलाता है जब केमिकल पैदा होती है, इससे बारिश होती है कि वो बारिश में जैसे केमिकल बह के हमारे खेत में आ जा, हमारे खेत और उनको खेत पे है। हम उसके कहता है कि भाई मत जला करो, बिहारी न राखे, वो खुद तो रहना है। धमकी देता तब हमसे कुछ नहीं होएगा। हाँ, तब से बंद नहीं होएगा तो कुछ एक दरखास्त लगा ले तब। जैसे नहीं तो हमारी ज्वार हुई पिछले साल भी, नहीं कणपण बोता है प्याज के लिए ना होवे। अच्छा, तो आपकी फसल भी डूब जाती है। अच्छा, बहुत बुरी है, खार दौड़े, बाल छोटे जावे है, खुजली मत बालकन के भी। आपको अच्छा, बच्चों को भी खुजली होती है? बच्चों को, बूढ़े बड़हन को भी, सबको दिक्कत दे रहे हो तो गांव में। अच्छा, और आप जब खेत में काम करते हो तो आपको मतलब आपके हाथ में या फिर छातन में खुजली मत्ती हो करे। अच्छा, एलर्जी सी हो जाती है। It isn't just Ruxina, but other villagers too who say that their children and elderly are suffering because of the pollution. Samin says that there are barely any elderly left in the village, and he squarely puts the blame on the Pollution Control Board authorities. जी इनको बचाते हैं जी किसी भी तरह से, जो जुर्माना ना लग पाए। इनकी ये मोटी रकम वसूलते हैं इनसे, और इसलिए जी गांव बहुत ज्यादा परेशान है। बीमारियों, हमारे गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं जी वो तो काफी मेरे हिसाब से इक्के दुक्के बचे जी, साजे गुजर रहे जी टीबी की बीमारी से। किसी के बच्चों के खाज, खुजली, और जी जैसे जानवर, वो बरसात के टाइम बरसात होती है तो पानी बहकर खेतों में जाता है तो फसल नष्ट। और जी जैसे गड्ढे, पहाड़ के, अरावली के गड्ढे, उनमें डालते हैं केमिकल को, उसमें जो जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह पानी पीते हैं तो वह मर जाते जी पानी पीने के बाद। On the other hand, the actual perpetrators named in the waste burning case allege that they are not doing anything illegal and have been framed.
और अभी जो उधर थोड़े गुल्ले पड़े थे, जो काले कलर के गुल्ले, हाँ जी, जो प्लास्टिक का वेस्ट है, प्लास्टिक का है। हाँ जी, तो उसका आप क्या करते हैं? उसका जी हम ये करते हैं जी, जैसे हमारे लिए मिल गया 8 रुपए किलो और हमने 20 पैसा किलो पे, 20 पैसा मिल गया किलो पे, हमने वो बेच दिया जी। अच्छा अब पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है जी, वो नहीं आ सकते। जी गाड़ी भरते हैं, कांटा पे पैसा ले लेते हैं, जी भाई गाड़ी चली जाती है। जी। सर हमारा और कोई काम तो आपका जलाने का काम है? नहीं जी, नहीं कोई जलाने का काम नहीं है, नहीं हम जलाएंगे, नहीं कानून के खिलाफ चलेंगे, नहीं कोई विभाग को हम दुख देंगे। After years of complaints to the Haryana Pollution Control Board, the police and the district magistrate, the villagers in 2024 banded together to file a public interest litigation against these proprietors in the Haryana High Court. जो कबाड़ी हैं, जो वायोलेशन कर रहे हैं लोग का, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, उनको इनको बंद करा जाए अवैध कारखानों को और इन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। क्यों ना इन्होंने पहले समय हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, पहले ही इनके पास पावर है, ये बंद क्यों नहीं करते? सिर्फ धरातल पर कार्रवाई चालू रहती है, कागजों में बंद कर देते हैं। अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं रीजनल ऑफिसर विपिन कुमार हैं। इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट एक्ट है, जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन एक्ट है, इनके अंदर कम से कम लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख इतना जुर्माना है और डे बाय डे अगर वायलेशन कर रिपीट करते हैं तो 5,000, 2,000, 3,000 का जुर्माना है, जबकि एक भी जुर्माना वसूला नहीं गया। सिर्फ कागजों में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अधिकारियों को नोटिस दे दिए कि हमने बंद करा दिए, बस, क्योंकि उनकी जेब भर जाती है। The PIL filed in the Haryana High Court therefore names not just the waste burners but also the government authorities that have let this burning go unchecked for years. ये मैं इन लोगों से पर्सनली मिला हूँ जो लोग ये वेस्ट जलाते हैं, और फिर उसके बाद डी साहब से मिले हैं, SDM साहब से मिले हैं, और अपने मिनिस्टर हैं पर्यावरण के, पूर्व मिनिस्टर, उनसे मिले थे। तो फिर लेकिन कुछ आश्वासन नहीं दे रहते हैं हर बार, कुछ कार्रवाई ऐसे मजबूत कार्रवाई नहीं होती है। What's all the more concerning is that these illegal burning units are operating right at the foothills of the Aravallis, which are probably one of the most eco-sensitive zones in the entire country. So the pollution from these units is not just impacting the locals living in the villages, but also the larger flora and fauna that resides in the Aravallis. Multiple activist groups have pointed out exactly this, but there remains to be seen what action the authorities take. While the public interest litigation plays out its course in the Haryana High Court, and while the Haryana and Rajasthan pollution control boards continue their attempts to curb this waste burning at its source, one thing that Khori Khud residents say is for sure is that they will have no respite from their smoke-filled rooms, hospital visits, and crop failures because of the pollution. This is Akanksha Mishra reporting for The Print.